صباح الخیر دوستو، آج ہم 8واں لیسن پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے۔ میں آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ اب تک آپ نے 7 لیسن اچھی طریقے سے پڑھ لیے، جس میں 50 سے زیادہ سینٹنس اسٹرکچر آپ نے سیکھا، 70 سے زیادہ نئے شبد، نئی ووکیبلریز کو آپ نے سیکھا۔ اب انہی میں سے سب کا ریویژن کرنا تو پاسبل نہیں ہے، ورنہ سارا ٹائم اسی میں ختم ہو جائے گا۔ جو زیادہ امپارٹنٹ ہیں انہی کا میں ریویژن کرا رہا ہوں۔ اس میں سے زیادہ ریویژن کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ میں نے آپ کو لیسن 4 میں پڑھایا تھا، میرا نام، آپ کا نام، اس کا نام، اس عورت کا نام۔ تو اس کو آئیے کریں۔ مائی نیم اسمی، یور نیم اسمکا، ہز نیم اسمہو، ہر نیم اسمہا۔ اب اگر اس کے سامنے صرف ماں بڑھا دیں جس کے معنی واٹ ہے تو سوال ہو جائے گا۔ ماں اسمکا، ماں اسمہو، ماں اسمہا۔ آپ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریں تاکہ آپ کی زبان کھلے، آپ کا پروننسیشن اچھا ہو۔ جب آپ نے یہ سیکھ لیا کہ مائی نیم، یور نیم، یہی چیز پریکٹس آپ کتاب پر کریں کہ میری کتاب، آپ کی کتاب، اس کی کتاب، اس عورت کی کتاب۔ تو کہیے مائی بک کتابی، یور بک کتابو کا، ہز بک کتابہو، ہر بک کتابہا۔ اب اس کو بھی ایک انٹروگیٹو پارٹیکل سے جوڑ کے دیکھیں کہ میری کتاب کہاں ہے؟ آئینہ کتابی۔ ویئر از یور بک؟ آئینہ کتابو کا۔ ویئر از ہز بک؟ آئینہ کتابہو۔ ویئر از ہر بک؟ آئینہ کتابہا۔ اب اسی پیٹرن پر آپ کتنے پوچھ سکتے ہیں کہ گھر کہاں ہے، اور اس کا قلم کہاں ہے، اس کی گاڑی کہاں ہے، اس کا ویزا کہاں ہے۔ تمام سینٹنس کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو میرے نزدیک امپورٹنٹ ہے، ہم ہمیشہ بولتے ہیں میرے پاس، آپ کے پاس، اس کے پاس، اس عورت کے پاس۔ تو عندہ کے معنی پاس ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو ای سے جوڑیں گے میرے پاس ہو جائے گا۔ عندی، عندکا، عندہو، عندہا ہو گیا۔ اس کو آپ انٹروگیٹو پارٹیکل سے جوڑیں کہ میرے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے۔ جیسے پوچھیں میرے پاس کیا ہے؟ ما عندی۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ما عندکا۔ اس کے پاس کیا ہے؟ ما عندہو۔ ما عندہا۔ اس عورت کے پاس کیا ہے؟ اب جب یہ آپ نے سوال پوچھ لیا تو جواب دے سکتا ہے کہ میرے پاس گھر ہے، میرے پاس کتاب ہے، میرے پاس سیارہ ہے، میرے پاس پاسپورٹ ہے، بہت سارے۔ یعنی اگر میں کہوں تو 50-60 سینٹنس آپ اس پر بنا سکتے ہیں۔ جب آپ نے ہیو کی پریکٹس کر لیا تو آئیے نیگیٹو پر کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو لیسا کے معنی نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہی لیسا عندی، لیسا عندکا، لیسا عندہو، لیسا عندہا۔ اس کی بھی پریکٹس آپ سب میں کر لیں۔ اور جتنے شبد آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، سب پر پریکٹس کریں۔ 50-60 سینٹنس بنائیں تاکہ آپ عربوں کی طرح عربی بول سکیں۔ اب آئیے لیسن 7 جس کو ہم نے کل پڑھا ہے، اس کا ریویژن تھارولی کر لیتے ہیں تاکہ وہ پورے شبد اور پورا کنسٹرکشن ہمارے ذہن میں آ جائے۔ لیسن 7 میں ہم نے پڑھا کیفا، اور کیفا کا استعمال کب کرتے ہیں؟ جب کسی کی کنڈیشن پوچھنی ہو تو اس کے جواب میں آئے گا کہ اچھا ہے، برا ہے، نیا ہے، پھٹا ہے، پرانا ہے، جو چاہیں کہیں۔ کیفا، ہاؤ، کیفا، کیفا، کیفا۔ پھر ہے سٹی، مدینہ، سٹی، مدینہ، روڈ، شارع، روڈ، شارع، فیکٹری، مصنع، فیکٹری، مصنع، کمپنی، شرکہ، کمپنی، شرکہ، ہوٹل، فندق، ہوٹل، فندق۔ اب نیو، جدید، نیو، جدید، اولڈ، قدیم۔ اب جیسے آپ کو سینٹنس بنانا ہو کہ میری کتاب نئی ہے، تو میری کتاب کی عربی کیا ہے؟ کتابی۔ نئی ہے، جدید، تو آپ کہیں گے کتابی جدید۔ میری کار نئی ہے، سیارتی جدیدہ۔ کہنا ہو آپ کا پین نیا ہے، قلموں کا جدید۔ آپ کی چابی نئی ہے، مفتاحوں کا جدید۔ اور اسی کے ساتھ قدیم پہ بھی بول سکتے ہیں۔ پھر اولڈ کے لیے قدیم، اولڈ،
قدیم, गुड, जयीद. देखो ये बहुत इस्तेमाल होता है. गुड, नॉट गुड. आपको मैंने पिछले किसी लेसन में सिखाया था येस एंड नो, और कहा था कि अगर आप येस और नो समझ लें तो उस लैंग्वेज की आधा समझ लेंगे. अगर गुड और नॉट गुड को समझ लें और इसको बोलना आ जाए आपको, तो आप कितना बताऊं, इसको गिनना तो बहुत मुश्किल है, परसेंटेज में लाना. मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 20% तो हम यही कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ नहीं अच्छी है. तो अच्छी के लिए क्या कहते हैं? जयीद. नॉट गुड, गैर जयीद. तो कहना हो कि आपकी गाड़ी, आपकी कार अच्छी है, तो क्या कहेंगे? आपकी कार. तो सय्यारतों का इज गुड, जय्यदा. सय्यारतों का जय्यदा. आपकी कंपनी अच्छी है, शरीकतों का जय्यदा. आपका होटल अच्छा है, फुंदुकों का जयीद. आप देखते होंगे कभी मैं जय्यदा कहता हूं, कभी जयीद कहता हूं. ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की वजह से. इसमें आप जरा भी परेशान ना हो, कभी भी ना घबराएं. जो आपको हो सके वो बोल दें. जिसकी जुबान है वो आपको अच्छी तरीके से समझ जाएगा. अब हमारा रिवीजन खत्म हो गया. अब हम 8वें लेसन को शुरू करने जा रहे हैं. दोस्तों, इस 8वें लेसन में हम वर्ब की शुरुआत करने जा रहे हैं. और अभी तक जो 7 लेसन आया था उसमें अरबी का कोई वर्ब नहीं इस्तेमाल हुआ था, जिसको आप क्रिया कहते हैं. अब यहाँ से शुरू होगा तो मैं ये नहीं कहूँगा ये मुश्किल होने जा रहा है, ये आपके लिए चैलेंजिंग है. देखते हैं कि आप इस चैलेंज को कैसे जाते हैं. और एक चीज़ और यहाँ आपको बता दूँ कि अरबी में हर वर्ब के 14 रूप होते हैं. जैसे अगर मैं आपको कहना हो कि मैं आया, तो कहूँगा मैं आया, हम दोनों आए, आप आए, आप दोनों आए, आप तमाम लोग आए, आप एक औरत आई, आप 2 औरतें आईं, आप तमाम औरतें आईं. वो एक आदमी आया, वो 2 आदमी आए, वो बहुत सारे लोग आए. वो एक औरत आई, वो 2 औरतें आईं, बहुत सारी औरतें. तो तकरीबन 14 होता है, जैसे संस्कृत में है. लेकिन मैं आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करूँगा. मैं आपको वही आपको सिखाऊंगा जैसे यू है, मैं हूँ, वो है, वो औरत है. यही 4 पर, ताकि हमारा लेसन ज़्यादा कंफ्यूजिंग न होने पाए और आप समझ जाएं. और जितने भी वर्ब आएंगे आप इसी 4 पैटर्न पर, कि मैं गया या मैं आया, आप आए, वो आया, वो औरत आई, इसी में आप काम चलाएं. तो पहला शब्द हमारा जो है, जो आज हम सीखने जा रहे हैं, वो इंट्रोगेटिव पार्टिकल है. और हम हर लेसन में एक ही इंट्रोगेटिव पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जब उसकी ज़रूरत पड़ती है. यहाँ ज़रूरत आ गई है वैन. वैन मीन्स मता. अरबिक में क्या कहेंगे? मता. मता. 5 बार मेरे साथ कहें ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाए. वैन, मता, 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 मता. मता मीन्स वैन. अब आया केम. इससे आपको पता चल गया होगा कि पहले हम पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं. टेंस जब आते हैं तो पास्ट है, फ्यूचर है, इम्परेटिव है, नेगेटिव है, बहुत सारे टेंस आ जाते हैं. तो हम पास्ट का सिंपल पढ़ने जा रहे हैं पहले. केम, इसकी अरबी में 2-3 वर्ड आते हैं. जाआ, कदेमा, आता. मैं आपको सिर्फ एक सिखाऊंगा. जाआ, केम, जाआ, केम, जाआ, जाआ, जाआ. मेरे पीछे कहें, केम, जाआ. अब आपको इसी में बना दें आई केम. अपने साथ लगा करके आई केम. आई की अरबी क्या है? अना. अब इसका देखो कैसे फॉर्म बदल रहा है, ऐसे ही फॉर्म हर एक में बदलेगा. अना जितु, अना जितु. आई केम, अना जितु. आई केम, अना जितु. आई केम, अना जितु. आई केम, अना जितु. यू केम, अंता जिता. यू की अरबी क्या है? अंता. अंता जिता. यू केम, अंता जिता. यू केम, अंता जिता. यू केम, अंता जिता. ही केम, हुआ जाआ. ही की अरबी क्या है? हुआ. और पहले आपने पढ़ा था केम जाआ. हुआ जाआ,
हुआ जाआ, she came, हिया जाअत, she came, हिया जाअत, she came, हिया जाअत। अब आइए इसको हम रिकैप कर लेते हैं। अना जितो, अंता जीता, हुआ जाआ, हिया जाअत। ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बस एक बार आप इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लें, फिर तमाम जितने भी क्रिया, टेंस आएगा, वर्ब आएगा, सब इसी तरीके से आएगा। अना जितो, अंता जीता, हुआ जाआ, हिया जाअत। और थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी, हाथ भी हिला लें। अना जितो, अंता जीता, हुआ जाआ, हिया जाअत। अब आपने जाआ जब पढ़ लिया तो ये भी आना चाहिए वेंट, जाने की अरबी। अरबों के वहाँ कई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। स्टैंडर्ड अरबिक में वेंट के लिए कहते हैं ज़हबा, लेकिन वो अपने घरों में बोल चाल में क्या कहते हैं, राहा। तो आप राहा इस्तेमाल कीजिए, राहा। वेंट की अरबी क्या है, राहा। वेंट, राहा, वेंट, राहा। और राहा के दूसरे मीनिंग क्या है, ही वेंट। जब आप कहते हैं राहा, उसके माने क्या है, ही वेंट। वेंट, राहा। अब आप जरा प्रैक्टिस कर दें। आई वेंट, मैं गया, मैं गया। अना रुह तो, जरा है निकालिएगा। अना रुह तो, आई वेंट, 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 अना रुह तो। यू वेंट, अंता रुहता, अंता रुहता, अंता रुहता, अंता रुहता। यू वेंट, अंता रुहता। ही वेंट, हुआ राहा, ही वेंट, हुआ राहा, ही वेंट, हुआ राहा। शी वेंट, हिया राहत, शी वेंट, हिया राहत। अब ये हमने आपको सिर्फ दो वर्ब पास्ट टेंस में दिए हैं। एक कहा केम, दूसरा वेंट। अब मेरे साथ करें, दोनों को एक साथ में मिलाता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं और आप दोनों को अलग अलग कीजिएगा। अना जितो, अना रुहतो, अंता जीता व अंता रुहता, हुआ जाआ, हुआ राहा, हिया जाअत, हिया राहत। देखिए दोनों को एक साथ कर दिया। जब आपने ये सीख लिया गया, आया, तो आप कहीं से आए होंगे और कहीं जा रहे होंगे, तो ये भी सीख लें। फ्राम, यानी मैं फलां जगह से आया हूं। फ्राम, से, हिंदी में कहते हैं से, अरबिक में कहेंगे मिन, मिन। फ्राम, मिन, फ्राम, मिन। देखिए मिन ही कहिएगा। अगर आपने गलती से कहीं मन कह दिया तो उसके माने हो जाएगा हु। तो आप हमेशा फ्राम के लिए क्या कहेंगे, मिन, मिन। जब कहेंगे टू, टू यानी कहां तक गए, कहां गए, तो कहेंगे इला, 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 इला। मिन, फ्राम, इला, टू, मिन, फ्राम, इला, टू। अब जब आप वर्ब सीख रहे हैं तो आप कब आए, जब आप आते हैं तो आज आए या कल आए, आप गए तो आज गए या कल गए। तो दो शब्द और सीख लीजिए। टुडे, आज की अरबी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल यौम, यौम के माने होता है डे, और उस पर अल लगा दिया तो हो गया टुडे। अल यौम, कहिए टुडे, अल यौम, टुडे, अल यौम, टुडे, अल यौम, टुडे, अल यौम। यस्टरडे, कल। अरबों के वहाँ कई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें स्टैंडर्ड अरबिक में तो अम्स इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना बोलचाल में वो बारहा कहते हैं, तो आप भी बारहा ही इस्तेमाल करें। यस्टरडे, बारहा, यस्टरडे, बारहा, यस्टरडे, बारहा, यस्टरडे, बारहा, यस्टरडे, बारहा। अब आइए एक मरतबा हम सब इकट्ठा कर लेते हैं कि हमने इस लेसन में क्या नए शब्द सीखे। देखिए हमने शब्द तो ज़्यादा हो गए, 14, 15, 16 हो जाएंगे आपके, लेकिन असल में ओरिजिनल कम ही है। अब जैसे वर्ब 2 हमने आपको दिया, वर्ब के ऊपर 4 उसके रूप सिखा दिए, तो 4 4 8 हो गया, तो उसको आप 2 ही जोड़िएगा, उसको 8 मत जोड़ें। पहला शब्द हमने सीखा मता, वैन। दूसरा है जाआ। अब जाआ पर आइए प्रैक्टिस कीजिए। आई केम, अना जेतो, अंता जेता, हुआ जाआ, हिया जाअत। तीसरा वर्ड है राहा। अना रुहतो,
अंता रुहता, हुआ राहा, हिया राहत। फिर आपने सीखा है मिन, मिन जिसके माने है फ्रॉम। फिर है इला, इला, इला के माने टू, इला टू। टुडे अलियौम, टुडे अलियौम, टुडे अलियौम। यस्टरडे बारिहा, यस्टरडे बारिहा। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा, शब्द मीनिंग आपके जहन में नहीं बैठेगा, फिर सेंटेंस बनाना मुश्किल होगा। फिर मैं आपसे कहूँगा कि इसको जब भी मौका मिले, कोई साहब एक बार में याद कर लेते हैं, किसी को दो बार लगता है, किसी को 4 बार रिपीटेशन में आता है, कुछ लोग और टाइम लगता है। तो जिसका जो भी कैपेसिटी हो, जो भी रफ्तार हो, उस हिसाब से इन शब्दों को पहले अच्छी तरीके से याद कर ले। मैं अब आपका टेस्ट लूँगा, एक क्विज़ पूछूँगा, देखता हूँ कि ये शब्द आपके क्लियर हुए या नहीं। अब ये क्विज़ क्लियर करेगा कि आपके जहन में ये अल्फाज क्लियर हैं या नहीं। तो मेरा पहला सेंटेंस अंग्रेजी से अरबी है, यू केम। सवाल सुन लें, यू केम, इसकी अरबी क्या होती है? पहला जवाब अना जितो, दूसरा जवाब अंता जिता, तीसरा जवाब हुआ जाआ। आप इसका जवाब दें। सही जवाब है अंता जिता। सही जवाब क्या है? अंता जिता। दूसरा सवाल अरबिक से अंग्रेजी, अल-यौम, अल-यौम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहला जवाब यस्टरडे, दूसरा जवाब व्हेन, तीसरा जवाब टुडे। आप अपना जवाब दें। सही जवाब है टुडे। अगर आपके जवाब गलत आए हों तो आप प्लीज़ जो शब्द हमको याद करना है उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ इंडिविजुअल शब्दों के अर्थ समझे हैं, उसको याद किए हैं। अब हम उसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इस स्टेप में प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने अभी तक क्या सीखा था, और हमारी प्रैक्टिस जो है कन्फाइन होगी केम और वेंट पर। केम की अरबी है जा, वेंट की अरबी है राहा। तो जा, राहा, उसके जो डिफरेंट रूप होते हैं उसी को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला सेंटेंस है आई केम टुडे। आई केम तो हमने इससे पहले भी पढ़ लिया है, उसकी अरबी है अना जितो। बढ़ाया हमने अलियौम, अब जोड़ दीजिए अना जितो अलियौम। आई केम टुडे, अना जितो अलियौम। अब अना के साथ आपने प्रैक्टिस करा तो यू के साथ कीजिए। यू केम यस्टरडे। टुडे आपने सीखा, अब यस्टरडे सीखिए। यू केम अंता जिता, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। यू केम अंता जिता यस्टरडे बारिहा। तो अब क्या कहेंगे? अंता जिता बारिहा, अंता जिता बारिहा। अब अना के बारे में पढ़ लिया, यू के बारे में पढ़ा, अब ही के बारे में। ही केम टुडे, ही केम टुडे। ही केम की अरबी क्या है? हुआ जाआ, हुआ जाआ। टुडे अलियौम, हुआ जाआ अलियौम, हुआ जाआ अलियौम। शी केम यस्टरडे, शी केम यस्टरडे। शी केम को आप पहले पढ़ चुके हैं, हिया जाअत, हिया जाअत। यस्टरडे बारिहा। अब पूरा सेंटेंस कर ले, हिया जाअत बारिहा, हिया जाअत बारिहा। आई वेंट टुडे। देखिए केम को हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके लिए इस्तेमाल कर लिया। अब वेंट पर, आई वेंट टुडे। आई वेंट की अरबी पहले भी पढ़े हैं, अना रुहतो। टुडे अलियौम, अना रुहतो अलियौम, अना रुहतो अलियौम, अना रुहतो अलियौम। यू वेंट यस्टरडे, आप कल चले गए। यू वेंट यस्टरडे। अंता रुहता बारिहा, अंता रुहता बारिहा, अंता रुहता बारिहा। ही वेंट टुडे, देखो ही वेंट टुडे। हुआ राहा अलियौम, हुआ राहा अलियौम, हुआ राहा अलियौम। देखो 3 अल्फाज हैं, ही वेंट, हुआ राहा, अलियौम टुडे। शी वेंट यस्टरडे, शी वेंट यस्टरडे। शी की अरबी है हिया, वेंट की अरबी है राहत,
yesterday की अरबी क्या है? बारिहा. She went yesterday. हिया राहत बारिहा. हिया राहत बारिहा. आप जब सेंटेंस को याद करें तो सिर्फ इसको रट्टा न मारें कि आप याद कर लें. आप सोचें, जब शी कहें तो किसी औरत की तस्वीर आए कि वो कल चली गई. जब आप कहते हैं कि मैं आया, वो आया, अब इसको उलट उलट करके जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, कंफ्यूज करके करेंगे, तभी जा करके आपका फंडा क्लियर होगा. अभी तक जो हमने पढ़ा था, आई केम टुडे, शी वेंट यस्टरडे, आप देखें जुमला वाक्य जो है छोटा था. अब हम उसको और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं. मिन और एला का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फ्राम एंड टू कहते हैं. तो पहला सेंटेंस है, आई केम फ्राम एयरपोर्ट टुडे. मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये तमाम शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं. आई केम, अना जितो, फ्राम, मिन, एयरपोर्ट, मतार, टुडे, अलियौम. अब देखिए सेंटेंस कैसे निकल के आता है. अना जितो मिनल मतार अलियौम. आई केम फ्राम एयरपोर्ट टुडे. अना जितो मिनल मतार अलियौम. सेकंड सेंटेंस लें. यू केम फ्राम हॉस्पिटल यस्टरडे. हर शब्द के मीनिंग आप जानते हैं. यू केम, अंता जिता. फ्राम, मिन. हॉस्पिटल, मुस्तशफा. यस्टरडे, बारिहा. अब सबको इकट्ठा कर दीजिए. अंता जिता मिनल मुस्तशफा बारिहा. यू केम फ्राम हॉस्पिटल यस्टरडे. अंता जिता मिनल मुस्तशफा बारिहा. तीसरा सेंटेंस ले लें. ही केम फ्राम होम टुडे. अब आप देखें कि हर सेंटेंस में हम वही पुराना अल्फाज जो आप सीख चुके हैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, ताकि आपका रिवीजन भी हो और आपकी सेंटेंसेस का जो ज़ख़ीरा है वो भी बढ़े. ही केम फ्राम होम टुडे. ही केम की अरबी हुआ जा. फ्राम, मिन. होम, बैत. टुडे, अलियौम. हुआ जा मिनल बैत अलियौम. हुआ जा मिनल बैत अलियौम. ज़रा मैं इसको स्लो मोशन में कह दूं. ही केम फ्राम होम टुडे. ही केम हुआ जा. फ्राम होम मिनल बैत. टुडे, अलियौम. पूरा सेंटेंस हो जाएगा, हुआ जा मिनल बैत अलियौम. अब देखिए शी के साथ इस्तेमाल करते हैं. शी केम फ्राम होटल यस्टरडे. जितने शब्द इस्तेमाल किए गए हैं सब जानते हैं. शी केम, हिया जाअत. फ्राम होटल, मिनल फुंदुक. यस्टरडे, बारिहा. तो अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि वो शी केम फ्राम होटल यस्टरडे. हिया जाअत मिनल फुंदुक बारिहा. और आगे बढ़ते हैं. देखिए केम के ऊपर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबकी प्रैक्टिस आपने कर लिया. अब हम वेंट के ऊपर कंसंट्रेट करने जा रहे हैं. आई वेंट टू द कंपनी टुडे. आई वेंट टू द कंपनी टुडे. आज मैं कंपनी गया. देखिए सबके मीनिंग आप अच्छी तरीके से जानते हैं. आई वेंट, अना रुहतु. टू द कंपनी, इला शरिका. टू द कंपनी, इला शरिका. अब राहा के साथ टू का इस्तेमाल हुआ, जा के साथ मिन का इस्तेमाल हुआ. इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा. आई वेंट टू द कंपनी टुडे. आई वेंट, अना रुहतु. टू द कंपनी, इला शरिका. टुडे, अलियौम. अब पूरे वाक्य को मैं एक साथ बोल रहा हूं. अना रुहतु इला शरिका अलियौम. अना रुहतु इला शरिका अलियौम. अब देखिए इसको सेकंड पर्सन के लिए. यू वेंट टू द सिटी यस्टरडे. आप कल शहर तक गए, जिसको तक में लगता है टू के माने में, यानी आप कल शहर गए, मीनिंग यही है. लेकिन चूंकि आपको पढ़ाना है तो आप ढूंढेंगे कि एला के मीनिंग कहाँ है, तो उसके माने तक. यू वेंट टू द सिटी यस्टरडे. यू वेंट, अंता रुहता. टू द सिटी, इलल मदीना. यस्टरडे, बारिहा. अब एक सांस में. अंता रुहता इलल मदीना बारिहा. अंता रुहता इलल मदीना बारिहा. यू वेंट टू द सिटी यस्टरडे. अंता रुहता इलल मदीना बारिहा. देखिए अंता पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ.
انا اور انتا یہی دو چیز ہیں جس کے بارے میں ہم زیادہ گفتگو کرتے ہیں, زیادہ بولتے ہیں. He went to the factory today. He went, آپ جانتے ہیں, ہوا راحا. To the factory, الى المصنع. To کے معنی الى, مصنع فیکٹری, دونوں کو جوڑیے, الى المصنع. Today, اليوم. اب ایک سانس میں کہیے, ہوا راحا الى المصنع اليوم. ہوا راحا الى المصنع اليوم. ہوا راحا الى المصنع اليوم. She went to the room yesterday. اب دیکھیے, she went, ہیا راحت, to the room, الى الغرفہ, yesterday بارحہ. تو اب ایک ساتھ ہو جائے گا, ہیا راحت الى الغرفہ بارحہ, ہیا راحت الى الغرفہ بارحہ. دوستو, یہ جو آپ کو من کا اور الا کا ایکسکلوسیولی اس ایکسرسائز میں پریکٹس کرایا جا رہا ہے, اس کو آپ دوسری چیزوں میں بھی استعمال کریں. جیسے کہنا ہو فرام دا کار, من السیارہ, ٹو دا کار, الی السیارہ. فرام دا ایئرپورٹ, من المطار, ٹو دا ایئرپورٹ, الی المطار. تو مین اور اس کو جو آپ نے ابھی تک 70 شبد سیکھے ہیں, دیکھو آپ اس کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں. قابلیت اسی میں ہے کہ آپ نئے نئے طریقے سے ان شبدوں کا استعمال کریں. اور کسی بھی زبان کے لیے کہا جاتا ہے کہ زبان کیسے سیکھ جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ دا بیسٹ وے ٹو لرن اے لینگویج ٹو اسپیک دا لینگویج. تو آپ لینگویج کو اسپیک کرو, اس کو صرف سمجھو نہیں, رٹے نہیں مارو, اس کو بولو. اب میں آپ کو کوئز کروں گا یہ جاننے کے لیے کہ جو کچھ بھی ہم نے اب تک سیکھا ہے کیا ہمارے ذہن میں کلیئرلی بیٹھ گیا ہے یا نہیں. پہلا کوشچن انگریزی سے عربی میں. سوال یہ ہے, ہی وینٹ ٹوڈے. سوال سن لیں, ہی وینٹ ٹوڈے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ پہلا جواب ہوا راحا الیوم. دوسرا جواب ہوا راحا بارحا. تیسرا جواب ہوا جاء الیوم. آپ اپنا جواب دیں. صحیح جواب ہے ہوا راحا الیوم. دوسرا کوشچن عربی سے انگریزی. سینٹنس ہے ہوا جاء من البیت الیوم. سینٹنس سنیں, ہوا جاء من البیت الیوم. اس کی انگریزی کیا ہوگی؟ پہلا جواب ہی کیم فرام ہوم یسٹرڈے. دوسرا جواب ہی کیم فرام ہوم ٹوڈے. تیسرا جواب شی کیم فرام ہوم یسٹرڈے. آپ اپنا جواب دے دیں. صحیح جواب ہے ہی کیم فرام ہوم ٹوڈے. اگر آپ کا جواب غلط آیا ہو تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ایکسرسائز ہم نے ابھی کیا ہے اس کو ریپیٹ کریں تاکہ یہ آپ کا سوال صحیح ہو جائے. دوستو, اب میں وہ جو سینٹنس ہم لوگوں نے پریکٹس کیا تھا اس سے پہلے اس کو اور بڑا بنانا چاہتا ہوں, اور یہ آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ سوال اور جواب اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے وربل سینٹنس میں. ہم نے اسی لیسن میں پڑھا ہے وین, جس کی عربی ہے متا. اب دیکھیے سوال میرا پہلے سن لیں کہ آپ ایئرپورٹ سے کب آئے, آج آئے ہیں یا کل آئے ہیں. سوال ہے وین ڈیڈ آئی کم فرام دا ایئرپورٹ. تو وین کی عربی کیا ہے؟ شروع میں لگائیے متا. متا. ڈیڈ آئی کم انا جئتو فرام دا ایئرپورٹ من المطار. تو اب پورا سینٹنس ہو جائے گا متا انا جئتو من المطار. اور یہ تمام شبد کے میننگ آپ پڑھ چکے ہیں, کوئی اس میں چیز نئی نہیں ہے. اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے آ جائے ہیں. یو کیم فرام دا ایئرپورٹ ٹوڈے. یو کیم. انتا جئتا فرام دا ایئرپورٹ من المطار ٹوڈے اليوم. اب پورا سینٹنس ایک ساتھ, انتا جئتا من المطار اليوم. انتا جئتا من المطار اليوم. اب پہلا کوشچن تو آئی کے بارے میں تھا, اب یو کے بارے میں. وین ڈیڈ یو کم فرام دا ہاسپٹل. دیکھو یو ہاسپٹل. وین ڈیڈ یو کم فرام دا ہاسپٹل. آپ ہاسپٹل سے کب آئے؟ متا انتا جئتا من المستشفى. بہت آسان ہے. متا انتا جئتا, وین ڈیڈ یو کم من المستشفى فرام دا ہاسپٹل. اب جواب آئی کیم فرام ہاسپٹل یسٹرڈے, کہ ہاسپٹل سے میں کل آیا ہوں. انا جئتو من المستشفى بارحا.
अना जिअतु मिनल मुस्तशफा बारिहा। अब यू के साथ सवाल हो गया। अब देखिए ही के साथ, थर्ड पर्सन के साथ हम सवाल कर रहे हैं कि वो घर से कब आया। When did he come from home? वो के साथ तो when did he come, मता हुआ जा, ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। मता हुआ जा, फ्रॉम होम मिनल बैत। जवाब है he came from home today. He came from home today. हुआ जा मिनल बैत اليوم. He came हुआ जा from home मिनल बैत today اليوम। एक साथ कहें हुआ जा मिनल बैत اليوم। अब आप देखें मैं अपने आप को कन्फाइन कर रहा हूं कि केम और वेंट ही की प्रैक्टिस करा रहा हूं, और सिर्फ 3 और 4 में अपने साथ, आपके साथ और उसके साथ, वो के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। केम के बाद अब हम प्रैक्टिस करते हैं वेंट का। व्हेन डिड आई गो टू द कंपनी, कि मैं कंपनी कब गया। तो व्हेन डिड आई गो उसी तरीके से जैसे पहले आपने कहा है। आई गो की अरबी क्या है, अना रुहतु। अब व्हेन को आपने शुरू में लगा दिया। मता अना रुहतु टू द कंपनी इला शरिका, तो पूरा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा मता अना रुहतु इला शरिका। व्हेन डिड आई गो टू द कंपनी, मता अना रुहतु इला शरिका। जवाब कोई भी दे सकता है। यू वेंट टू द कंपनी टुडे, कि आज आप कंपनी गए। तो यू वेंट अंता रुहता टू द कंपनी इला शरिका टुडे अलयौम। एक साथ करें अंता रुहता इला शरिका अलयौम, अंता रुहता इला शरिका अलयौम। अब अना के बाद सेकंड पर्सन को हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वेंट के साथ। व्हेन डिड यू गो टू द सिटी, आप शहर कब गए। मता अंता रुहता इलल मदीना, मता अंता रुहता इलल मदीना। देखिए मैं बड़ा स्लो मोशन में बोल रहा हूँ। जब आप इसको रट लेंगे तो आप जल्दी से बोलेंगे मता अंता रुहता इलल मदीना, मता अंता रुहता इलल मदीना। अब जवाब में यू वेंट टू द सिटी यस्टरडे, कि आप कल गए थे। यू वेंट टू द सिटी यस्टरडे, आप शहर कल गए थे। अंता रुहता इलल मदीना बारिहा, अंता रुहता इलल मदीना बारिहा, बिल्कुल क्लियर है। अब आखिरी सेंटेंस वेंट के साथ थर्ड पर्सन के लिए हम इस्तेमाल कर लें। व्हेन डिड ही गो टू द फैक्ट्री, कि वो फैक्ट्री कब गया था। मता हुआ राहा इलल मसना, मता हुआ राहा इलल मसना, मता हुआ राहा इलल मसना। जवाब ही वेंट टू द फैक्ट्री टुडे, वो आज फैक्ट्री गया था। अब जवाब दें हुआ राहा इलल मसना अलयौम, हुआ राहा इलल मसना अलयौम। अब देखिए मैंने तो आपको सिर्फ 7 या 8 सेंटेंस इसमें सिखाए हैं, लेकिन ये सेंटेंस जो हैं ये पैटर्न है। जैसे आप कहें वो एयरपोर्ट आज गया, वो फैक्ट्री आज गया, वो हॉस्पिटल आज गया, वो कब आया, वो फैक्ट्री से आज आया, वो फलां जगह से आज आया, वो कल आया। इसको जितने शब्द आप जानते हैं सब शब्दों के साथ इसको मिला करके वेंट एंड केम की प्रैक्टिस करें, फिर आपकी अरबी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम अपने सेंटेंस को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे सवाल करेंगे तो उसका जवाब येस एंड नो में होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि येस और नो से हमारी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये आखिरी पड़ाव है इस लेसन का। अब देखें कैसे होता है। पहला सेंटेंस है डिड यू कम फ्रॉम एयरपोर्ट टुडे, क्या आज आप एयरपोर्ट से आए हैं। डिड यू कम फ्रॉम द एयरपोर्ट टुडे, आपने इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है कि आप न बना पाए। जहाँ आर आता है, डिड आता है, पहले सवाल करते हैं तो हम उसे हल से अरबिक में शुरू करते हैं। डिड यू कम, हल अंता जीता फ्रॉम द एयरपोर्ट मिनल मतार टुडे अलयौम। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा हल अंता जीता मिनल मतार अलयौम, हल अंता जीता मिनल मतार अलयौम, क्या एयरपोर्ट से आज आप आए हैं। इसका जवाब क्या हो सकता है। यस आई केम फ्रॉम एयरपोर्ट टुडे, यस नाम आई केम फ्रॉम द एयरपोर्ट, अना जीतु मिनल मतार टुडे अलयौम। एक सांस में एक साथ कहिए नाम अना जीतु मिनल मतार अलयौम, नाम
अना जिअतु मिनल मतार अल-यौम। और अगर आप नहीं आए हैं, सवाल वही है, आप इसका नेगेटिव में जवाब देते हैं, तो देखिए वो कैसे बनेगा। डिड यू कम फ्रॉम द एयरपोर्ट टुडे, वही सवाल, हल अंता जिअता मिनल मतार अल-यौम, आप कहते हैं नहीं, कह रहे हैं नो आई केम फ्रॉम एयरपोर्ट यस्टरडे, तो आप क्या कहेंगे, ला, थोड़ा सा सर हिला लीजिए, ला अना जिअतु मिनल मतार बारिहा, ला अना जिअतु मिनल मतार बारिहा। अब हमने केम के ऊपर प्रैक्टिस कर लिया, अब वेंट की कुछ प्रैक्टिस कर लें, और हम इसके लिए थर्ड पर्सन को इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पर्सन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। डिड ही गो होम टुडे, क्या आज वो घर गया, थर्ड पर्सन के लिए। डिड ही गो होम टुडे, हल हुआ राहा इलल बैत अल-यौम, डिड ही गो, हल हुआ राहा होम इलल बैत टुडे अल-यौम। अब एक साथ, हल हुआ राहा इलल बैत अल-यौम। अब इसी पैटर्न पर आप जो भी चाहें सेंटेंस बना लें। डिड ही गो टू द एयरपोर्ट टुडे, डिड ही गो टू द फैक्ट्री टुडे, अब उसका जवाब ये से नो में आएगा। अब इसका जवाब क्या है, यस ही वेंट होम टुडे, यस की अरबी क्या है, नाम, ही वेंट होम, हुआ राहा इलल बैत टुडे अल-यौम, नाम हुआ राहा इलल बैत अल-यौम, नाम हुआ राहा इलल बैत अल-यौम। अब आखिरी सेंटेंस आज का हम सीखने जा रहे हैं, और वो है डिड यू गो टू द कंपनी यस्टरडे, डिड यू गो टू द कंपनी यस्टरडे। अब वही डिड यू गो, हल अंता रुहता टू द कंपनी इला शरिका यस्टरडे बारिहा। अब एक साथ कहें, हल अंता रुहता इला शरिका बारिहा, हल अंता रुहता इला शरिका बारिहा। जवाब क्या है, यस आई वेंट टू द कंपनी यस्टरडे, हाँ कल मैं कंपनी गया था। यस, नाम अना रुहतु इला शरिका बारिहा, अना रुहतु इला शरिका बारिहा। दोस्तों, इस सेंटेंस को याद करने के बाद इसको आप एक पैटर्न समझें, और जितने वर्ड आप जानते हैं देखें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी में आपकी कामयाबी है। अब मैं आपको क्विज़ के ज़रिया टेस्ट लेना चाहूँगा कि क्या ये चीज़ जो मैंने प्रैक्टिस करवाया है वो क्लियर हुई है या नहीं। पहले आप अंग्रेज़ी से अरबी करें। सेंटेंस है, व्हेन डिड यू केम फ्रॉम द हॉस्पिटल। सवाल सुन लें, व्हेन डिड यू केम फ्रॉम द हॉस्पिटल। पहला जवाब, मता अंता जिअता मिनल मतार। दूसरा जवाब, मता अंता जिअता मिनल मुस्तशफा। तीसरा जवाब, मता अंता जिअता मिनल बैत। आप अपने जवाब दे दें। सही जवाब है मता अंता जिअता मिनल मुस्तशफा। दूसरा क्वेश्चन अरबिक से अंग्रेजी। क्वेश्चन है, नाम अना रुहतु इला शरिका बारिहा। सवाल सुन ले, नाम अना रुहतु इला शरिका बारिहा। पहला जवाब, यस आई वेंट टू द कंपनी टुडे। दूसरा जवाब, यस आई वेंट टू द कंपनी यस्टरडे। तीसरा जवाब, यस आई वेंट टू द फैक्ट्री टुडे। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है यस आई वेंट टू द कंपनी यस्टरडे। इसी के साथ हम इस लेसन के अंत तक पहुंच चुके, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लेसन के अंदर हमने 11 तरीके का सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा है। वो क्या है, रिकैप के लिए, व्हेन, मता, आई केम के साथ मैंने आपको सिखाया, जब आपने आई केम, यू केम, ही केम, तमाम का प्रैक्टिस कर लें। देन आई केम टुडे, उसके बाद आई केम फ्रॉम द एयरपोर्ट टुडे। देखें सेंटेंस को मैंने ग्रेजुअली कैसे बढ़ाया है। पहले आई केम, देन आई केम टुडे, फिर वही सेंटेंस हो गया आई केम फ्रॉम द एयरपोर्ट टुडे। अब इस पर सवाल क्या होगा, हु केम,
जवाब हो सकता है he came. When did he come? वो कब आया? He came in the morning. Did he come in the morning? Yes, he came in the morning. और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कहेंगे No, he came in the evening. दोस्तों, ये जो 11 सेंटेंस के स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, इसमें कोई चीज़ नई नहीं है कि जिसको आपने पढ़ा नहीं हो। अगर आपको कोई जवाब नहीं समझ में आता है, कहीं अटकते हैं, तो आप पुराने लेसन्स को रिवीजन कीजिए, इसका जवाब वहाँ आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको सिखाना चाहूँगा कुछ एटिकेट ग्रीटिंग के। आखिर में हमने पिछले लेसन में सिखाया था कि जब किसी को हालत पूछते हैं तो कहते हैं कैफ़ा हालुका, तो वो जवाब देता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिर में मैं आपको ये सिखाना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई फेवर करे तो आप कैसे उसका शुक्रिया अदा करेंगे। सिंपली आप कह सकते हैं शुक्रन। अरबों के वहाँ बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे वाक्य हैं, अशकुरो का, शुक्रन जजीलन, लेकिन सबसे आसान है शुक्रन। कैसे कहेंगे? शुक्रन। और जब शुक्रन कहें तो थोड़ा सा मुस्कुरा दें, और वो जिसका शुक्रिया आप अदा कर रहे हैं वो आपसे कहेगा अफ़वन, 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 शुक्रन, अफ़वन। अब मेरी मुलाकात आपसे दूसरे लेसन में होगी, तब तक के लिए बाय बाय।